Assalamu alaikum students. Hope everyone will be fine. Yes, in the last session we have discussed about the topic photosynthesis. We have discussed about the ATP and then different steps of the photosynthesis, in which we have discussed about the light reaction and dark reaction in detail. And today we are going to discuss about the topic respiration. That one is the second part of chapter bioenergetic, because bioenergetic means that there is energy transformation. And the second half of this chapter consists of the respiration, like how we will get the energy. In the last session I have discussed that inshallah I will explain about how energy is released and then stored in the form of ATP. As you know that we need for the energy, because we know that principal source of the energy is the sun, but the basic source from where we get the energy in the form of food. And we know that food basically consists of carbon, hydrogen and oxygen. So energy is blocked in the form of these bonds between carbon and hydrogen, and how we will get this energy from this bond, right? So how this energy will be released? For this we need oxygen gas. Clear? We need oxygen gas, and that oxygen gas basically break these bonds, and then energy will be released, which is stored in the form of ATP. So energy yielding processes basically includes the process of respiration, because respiration means that energy yielding processes, and how there will be the respiration will be takes place, because we need energy, and for this process there will be oxidation of the food stuff. Why is it so? Because energy is trapped in this form. In the first half we have discussed about the photosynthesis. ठीक है, हमने photosynthesis को डिस्कस किया था, जो कि उसकी टर्म में उसका मीनिंग जो है वो हिडन फॉर्म में है. लाइक फोटो मीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंथेसिस मीन मेकिंग ऑफ समथिंग. तो हमने फोटोसिंथेसिस में डिस्कस किया था कि फूड इज प्रिपेयर्ड by which type of organisms? By autotrophic organisms. Autotrophic organisms prepare their food by themselves, and then they will utilize the energy from that prepared food. But the other animals, like heterotrophic organisms, who can't prepare their food by themselves, so that's why they are dependent on the other organisms directly or indirectly. So how they will get the energy? They will get the energy in the form of food, which is prepared by the plants, maybe directly or maybe indirectly. ठीक है. फोटोसिंथेसिस में नॉर्मली क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में फूड की प्रेपरेशन होती है. उसमें हमारी इक्वेशन जो थी, लाइक इन द फोटोसिंथेसिस वी डिस्कस दैट देयर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, and then there will be utilization of water in the presence of sunlight or whatsoever, what's the source of the light, and in the presence of chlorophyll. In the last session we have discussed about this topic, that there will be use of carbon dioxide gas from the air, from the environment, and water will be absorbed from the soil with the help of roots. So then there will be the preparation of food in the form of glucose C6H12O6 plus oxygen gas as a byproduct, and as well as water. So that one is an equation of photosynthesis which we have discussed in the last session. This equation related to the photosynthesis. Because the question related to this topic, like you have to differentiate between respiration and photosynthesis. You have to write down the differences, how you will compare respiration and photosynthesis. So how you can differentiate that which things are using in the photosynthesis and which things are using in respiration. So that's why I'm writing this equation over here again. And what's the equation of respiration? Respiration basically that there will be oxidation of the food stuff, like this one molecule of glucose will be broken down, and by the utilization of which gas? By the utilization of oxygen gas, right? And then what we will get? Carbon dioxide gas plus water plus energy.
which will be stored in the form of ATP. सिंपल सी बात है बेटा. फोटोसिंथेसिस जो है, अगर आप यहाँ पे, अब दोनों को आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फोटोसिंथेसिस में देखें क्या चीज़ यूज़ हो रही है. देयर इज़ अ यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ हो रही है. और उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे लाइक कौन सी चीज़, किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है. देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, और इसके साथ कौन सी गैस रिलीज हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन गैस. और यहाँ पे आप ये देखें, ये उसका रिवर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. लाइक इन रेस्पिरेशन देर इज़ अ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, देर इज़ अ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. यहाँ पे ग्लूकोज यूज़ हो रही है, ये रिएक्टेंट में आ रही है. इसमें ऑक्सीजन गैस यूज़ हो रही है, उसमें रिलीज हो रही है. और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो यूज़ हो रही है. ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन गैस हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ. There will be the oxidation of the foodstuff and then you will get the energy. Okay, and you can see over here that in the respiration there will be a gas, carbon dioxide gas, which is a waste gas. It will be released outside the body. And then water definitely it's utilized in the reaction, and then you will see over here that there is a release of energy which will be stored in the form of ATP. यहाँ पे girls, students, you can see over here that there is a utilization of energy. From where this energy is coming? From the light. लाइट सोर्स है यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन गैस उसके साथ बाय प्रोडक्ट बन रहा है. यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों यूज़ होंगे. जब दोनों यूज़ होंगे तो जो जितनी एनर्जी इनके अंदर ट्रैप्ड फॉर्म में है, तो वो सारी की सारी एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी और ATP की फॉर्म में. अब लाइक वी हैव टू थिंक अबाउट इट दैट रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ओनली इन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली एंड ओनली in autotrophic organisms which have green pigment, which have chlorophyll, because that one is very very important factors. अगर chlorophyll नहीं होगा photosynthesis नहीं होगी. अगर chlorophyll है then there is a possibility of photosynthesis. तो इसलिए photosynthesis सिर्फ और सिर्फ photosynthetic organisms में होगा जिनमें chlorophyll भी होगा. और सेकेंडली इसमें क्या फैक्टर है कि सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ देर विल बी नो लाइट, देर इज़ अ नो सोर्स ऑफ लाइट, देन देर विल बी नो फोटोसिंथेसिस. सो इट मीन्स फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम. ये डे टाइम में होगी. नाइट टाइम में क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होगी सनलाइट की, तो इसलिए नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो सकता. लेकिन रेस्पिरेशन, बेसिकली रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फोटोसिंथेसिस में हमारा पॉइंट था फोटोसिंथेसिस अकर ओनली एंड ओनली इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हु हैव क्लोरोफिल इन देयर सेल्स. ठीक है, और इसमें ये क्या है रेस्पिरेशन में ये है कि रेस्पिरेशन देर इज़ नो नीड ऑफ क्लोरोफिल. देर इज दिस रिएक्शन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइट. ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि लाइट होगी तो तब आप रिस्पायर कर सकते हो. सो रेस्पिरेशन अकर्स बिकॉज दिस वन इज़ एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज होगी तो हम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. इवन के जो प्लांट्स हैं जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो खुद से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, एनर्जी की नीड उन्हें भी है. सो ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओवरऑल टर्म हम यूज़ करेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी. एंड फॉर द एनर्जी देर इज़ द नीड ऑफ अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज रेस्पिरेशन. फिर हमें इस प्रोसेस की नीड है रेस्पिरेशन की. सो रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. फिर सेकेंड डिफरेंस क्या आ सकता है, फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट्स लाइट डिपेंडेंट, इट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, और रेस्पिरेशन अकर्स ऑल द टाइम. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लाइक इफ़ यू विल नॉट रिस्पायर इट मीन्स यू विल नॉट बी कंसिडर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो रेस्पिरेशन इट अकर्स ऑल द टाइम. ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ये 24 आवर्स जो है वो रेस्पिरेशन होती है. दूसरी बात आप यहाँ पे देखें, यहाँ ये वाले जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दीज आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज. यानी ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, दिस वन इज़ अ लार्जर मॉलिक्यूल. इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है. एनाबॉलिक, ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस का मीनिंग ये होता है एनाबोलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस, लाइक देयर वेयर देयर इज़
फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स बाय द यूज़ ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो ये सिंथेसिस हो रहा है, कुछ बन रहा है, मेकिंग हो रही है, देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल। सो फोटोसिंथेसिस लाइक देर इज़ अ प्रोसेस एनाबोलिज्म, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, यू कैन सी ओवर हेयर देर इज़ अ ब्रेक डाउन, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहे, देर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ larger molecule into smaller molecules. So this one is a catabolic reaction or catabolism. Cata mean cut. There is a breakdown of the bond. अच्छा, उसके बाद सेकेंडली एनाबोलिज्म में अब ये देखिए यहाँ पे एनर्जी जो है वो कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज हो रही है और एनाबोलिज्म में एनर्जी यूज हो रही है। डन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये है कि लाइक इसमें आपका ये वाला जो रिएक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, दिस रिएक्शन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ये कौन से ऑर्गेनल्स में होएगा, ये क्लोरोप्लास्ट में होएगा। और रेस्पिरेशन किस में होता है, साइटोप्लाज्म में एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। इज दैट क्लियर अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस? Because that one is very important question for the short question as well as for the long question. If that question will be in a in the form of short question, then definitely you have to write down the according to the marks. Like if there will be a question of 2 marks or 3 marks, you have to write down the differences according to the demand of marks. If there will be a long question, then you have to write all these points. Then you have to include these equations as well. Okay, now we have to move that respiration. There are 2 types of respiration. Clear? Food here I have explained, यहाँ पे मैंने आप लोगों को explain किया हुआ है कि how there will be the release of the energy and how this energy will be stored in the form of ATP. अब ऑक्सीजन गैस कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन गैस is coming from the lungs, right? Oxygen gas is coming from, because you are inhaling the air. So from the lungs, your cell will get the oxygen gas from where? From the lungs. This one is a nucleus. Okay, your cell is getting oxygen gas from where? From the lungs, because you are inhaling the air. That air is coming through your air passageway, and then that oxygen gas will be supplied to each and every cell. So the process is going on in one cell, mean that the same process will be going on in all cells. If there will be a deficiency of oxygen, then that cell will lead toward the death. अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली उस सेल की डेथ होगी। अच्छा, फूड कहाँ से आ रही है? डेफिनेटली फूड इज़ कमिंग फ्रॉम योर digestive system, right? That food is coming from where? From your digestive system. ठीक है। अब लेकिन ये फूड how it will be passed to the cells from the digestive system and oxygen from the respiratory system through the circulatory system, ठीक है, by the medium of blood, के blood के थ्रू ये आगे cells को pass on होगी। Here there will be the oxidation of the food प्लस ऑक्सीजन। फूड हमारे पास मेन फ्यूल है, जस्ट लाइक अ पेट्रोल इन द व्हीकल। जिस तरह व्हीकल में पेट्रोल होता है, वो जब बर्न होएगा फिर उसमें से वो एनर्जी रिलीज होएगी, फिर आप व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। अगर फ्यूल बर्न नहीं होगा, आप देखिए उसमें भी कंजप्शन हो रही होती है। आप फ्यूल फिल करवाते हैं या गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक आफ्टर सम डिस्टेंस डेफिनेटली पेट्रोल विल बी कंज्यूम्ड, और मे बी इफ़ यू आर यूजिंग द गैस गेट, ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपके पास वो फ्यूल जो बर्न होएगा, फिर एनर्जी रिलीज़ होगी और वो उसी एनर्जी की वजह से आगे गाड़ी ड्राइव करेगी। तो सेम हमारी, क्योंकि बॉडी लिविंग मशीनरी है, हमारी बॉडी को भी लाइक इसको मूव करने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में ट्रैप होती है, किस फॉर्म में ब्लॉक हुई होती है? वो फूड की फॉर्म में, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन, इस फॉर्म में ये ब्लॉक हुई होती है। इसको हमने यहाँ से रिलीज़ करना होता है। और वो कैसे रिलीज़ होएगा? बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। वो सेल के अंदर ये दोनों चीज़ें जब आगे सेल को दिए जाएंगे, देन सेल विल ऑक्सीडाइज द फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी, और फिर वो एनर्जी आपके पूरे सेल में एटीपी की फॉर्म में, पूरे सेल में सेमी लिक्विड की फॉर्म में, शुगरी सा मटेरियल होता है। मैंने एटीपी का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें जो भी कंपोनेंट्स थे उसमें शुगर भी थी, तो वो सारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगी। बट बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट दिस रेस्पिरेशन, first of all we have to discuss that there are 2 types of respiration.
There are two types of respiration. One is known as aerobic, because this question is also very important. Like they can ask about the differences between aerobic respiration, and second one is anaerobic. Aerobic respiration mean that there is a utilization of oxygen gas, and this type oxygen gas will be used. Anaerobic respiration, there is no utilization of oxygen gas. Is that clear? Now I will differentiate between these two types of respiration, and inshallah in the upcoming video I will explain about the types of the anaerobic respiration and why there is a need of anaerobic respiration. But today I will only and only differentiate between the aerobic and anaerobic respiration. Then we will discuss about the detail of anaerobic, and in the next video we will discuss about the detail of aerobic respiration, because that one is a detailed pathway. So what are the differences between the aerobic and anaerobic respiration? मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी कि anaerobic respiration की क्या इम्पोर्टेंस है, why there is a need of this system and why there is a need of this process. Aerobic respiration mean that there is a utilization of oxygen gas, mean there will, and in anaerobic no use of oxygen, इसमें oxygen gas use नहीं होती. So that's why this reaction, this process occurs in the absence of oxygen. एक तो ये इसमें डिफरेंस है, जो मेजर इसका डिफरेंस है. इन एरोबिक रेस्पिरेशन देर इज़ अ यूज़ ऑफ ऑक्सीजन गैस, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस. एक तो ये नंबर वन डिफरेंस ये हो गया. सेकेंड, इसमें क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस यूज़ हो रही है, सो ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिस तरह अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल को देखें C6H12O6, अगर मैं इसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ C6, यानी कि C6, there are 6 carbons which are attached with 12 hydrogen. ठीक है. So oxygen gas, due to the availability of oxygen gas, all the bonds which are present between carbon and hydrogen will be broken down. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, इसलिए जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सब के सब बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एनर्जी रिलीज होएगी. इसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन. कंप्लीट oxidation of foodstuff. No one bond will be left over. And in anaerobic respiration, because there is no utilization of oxygen gas, so that's why there will be incomplete oxidation of foodstuff. Incomplete. Some of the bonds will be left over. In the upcoming video I will explain why I'm saying that there is incomplete oxidation and in this process there is complete oxidation. ये भी आपको मीनिंग क्लियर कर दूंगी कि ये ऑक्सीडेशन, लास्ट मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है. गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, देयर विल बी लॉस, क्योंकि जब ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन लॉस हो रहा है. जब लॉस होएगा तो डेफिनेटली हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. और रिडक्शन का मीनिंग होता है गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन गेन होता है. तो जिस तरह रिडक्शन मैंने आपको बताया था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो हेयर विल बी द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, क्योंकि ऑक्सीजन गैस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स में नहीं होता, तो इसलिए इसमें इनकम्प्लीट होगी. जब इनकम्प्लीट है, थर्ड डिफरेंस क्या आ सकता है, जब इसमें इनकम्प्लीट है. अब हमने देखना हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है. इसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है कितने एटीपीज बनेंगे, हाउ मैनी एटीपीज विल बी फॉर्म्ड बाय द यूज़ ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 36 एटीपी. और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपीज होंगे. वाई? बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन यूज़ होगी तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो एटीपीज भी ज़्यादा बनेंगे. यहाँ पे ऑक्सीजन गैस यूज़ नहीं हो रही, इस वजह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एटीपीज भी कम बनेंगे. सो हाउ मैनी एटीपीज आर फॉर्म, 2 एटीपीज. उसके अलावा क्या आपका आ जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज
रिलीज्ड। मैक्सिमम आप खुद देख लें कि उसमें 36 है और उसमें फिर आपका ये है कि इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे। इसमें आपके पास एंड प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, जो कि अभी मैंने इक्वेशन में बताया है। इसमें एंड प्रोडक्ट हमारे पास टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है, कौन सी टाइप एनारोबिक रेस्पिरेशन की हो रही है, कौन सी फर्मेंटेशन हो रही है। फिर उसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन से वाला या तो लैक्टिक एसिड या फिर एथेनॉल, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगी प्लस कार्बन। ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप है, जो कि मैं कल वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो मेरी आने वाली वीडियो है। उसके बाद बेटा इसमें जो नेक्स्ट वन है कि ये वाला जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस भी यूज़ हो रही है, तो ये प्रोसेस होता है एक तो साइटोप्लाज्म, उसमें फर्स्ट स्टेप उसका जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होएगा, और बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेस होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में, सिर्फ सिंपल साइटोप्लाज्म में होगा। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अच्छा जी, ये आपका आ जाएगा। दिस वन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन हायर ऑर्गेनिजम्स, इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, and this one is the for the most organisms, and this one is the source of energy for anaerobic organisms and source of energy for organisms like aerobic organisms when there will be short supply of oxygen, and that one is also source of many products. ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ये मैं अपकमिंग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि हाउ आई एम सेइंग दैट दिस वन प्रोसेस anaerobic respiration is also used by aerobic organisms, like जो ये वाले organisms हैं, जो aerobic organisms हैं, sometimes वो भी यही वाला process भी यूज़ करते हैं, और उसकी रीज़न क्या है ये मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को कर लें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे अपनी वीडियोस इसी तरह आगे अपलोड करती जाऊंगी, जो भी कॉम्प्लेक्स और जो भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।